Welcome to the channel. Let's start the today's session. The topic for the today's session is transportation problem. As you can see, I have written some definition here. Let's understand this first, then we will move to problems. Transportation problem. Transportation problem is a special kind of linear programming problem in which the goods are transported from a set of sources to the set of destinations subject to the supply and demand of the sources and destination respectively, such that the total cost of the transportation is minimized. The goal here is to minimize the transportation cost. It is sometimes also called as Hitchcock problem. Now, the transportation problems are defined into two types, that is balanced transportation problems and unbalanced transportation problems. Balanced transportation problems are those transportation problems in which the supply and demands are equal, that is S is equals to D. And unbalanced transportation problems are those transportation problems in which supply is not equals to demand. Now, in order to solve an unbalanced transportation problem, you have to first convert it into balanced transportation problem. For solving unbalanced transportation problem, a dummy row or dummy column is added according to the requirement to make it as a balanced transportation problem. Then it can be solved similar to the balanced transportation problem. As we can see, transportation problem can be solved in two steps. The first step is finding the initial basic feasible solution, and the second one is finding optimization. By optimization we means finding the best solution. Let us discuss this. This is a type of optimization problem. This is the structure you will be getting in the questions. Now here it is the source, here it is the supply, here it is the demand. For first step we will check it for balanced or unbalanced transportation problem. For checking it, what we can do, we can see what the demand and supply is. Here 500 plus 300 plus 200, it is 1000. 400 plus 400 plus 200, it comes out to be 1000. It means it is balanced transportation problem. It is balanced transportation problem. Why? Because demand is equals to supply, and when demand is equals to supply, we know it is a balanced transportation problem. Now, for finding the initial basic feasible solution, that is step 1, we have three methods. The mostly used, there are three methods. First one is northwest corner cell method, second one is least cost cell method, and third one is VAM, Vogel's approximation method. Let's start with northwest corner method. In this method, initial feasible step is same. We have to check whether the given problem is balanced or unbalanced. Let us check it. For checking it, we have to add the supply column and the demand row. For supply, we know that 500 plus 400, 900 plus 300, 1200, and 350, 250, 600, 1000, 1000 plus 200 gives us 1200. Means it is also a balanced. It is also a balanced problem. ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम मेथड में देख सकते हैं, ये बता रहा है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, हमको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से शुरू होना है और अपने सम को सॉल्व करना है. Our northwest corner right now is this one. Now let us see how to solve this problem. Here we can see our demand is 250 and supply is 300. We can allocate 250 to this column. When we will allocate 250 to this, our demand becomes 0 and our supply reduces to 50. क्योंकि हमने 250 इसको दे दिया, 300 में से 250 निकालेंगे तो हमारे पास 50 बचेगा. इसके बाद जब हमारी डिमांड, जब हमारी रो या भी हमारा कोई कॉलम, जैसे ही वो 0 हो जाएगा, बाकी के सारे को हम कैंसिल आउट कर देंगे. यानी ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी और ये भी. नेक्स्ट, अब हमारे पास बचा है सिर्फ ये वाला टेबल, सिर्फ ये वाला हिस्सा हमारे पास रह गया है.
अब इसमें से हम देखेंगे हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बन रहा है। अब हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनेगा ये वाला कॉलम। अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास डिमांड है 350, लेकिन सप्लाई हमको चाहिए सिर्फ 50 की। इसको हम क्या एलोकेट कर देंगे 50। हमारी सप्लाई हमको कितनी चाहिए, क्योंकि 50 इसलिए हमने इसको एलोकेट कर दिया। और ये अब हमारा हो जाएगा 0। यहां से 350 में से 50 के तो 300। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे ही हमारी कोई रो या कोई कॉलम 0 हो जाएगा, उसके बाद हम उस पूरी रो या कॉलम को कैंसिल आउट कर देंगे। इसको हम फिर से कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये वाली रो 0 हो चुकी है। फिर से हम देखेंगे हमारा नेट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बन रहा है। अब हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बन रहा है 6। अब 6 में देखते हैं हम, यहाँ पे सप्लाई है 400 और डिमांड है 300 की। इसको हम 300 एलोकेट कर देते हैं। ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 100 रह गया। अब जैसे ये हमारा रो कॉलम 0 हो गया, बाकी हम सारी रो को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और ये वाला हमारा पूरा कॉलम कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर फिर से फाइंड करेंगे। अब ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनेगा। इसकी डिमांड है 400 की और सप्लाई चाहिए 100 की। इसको हम 100 की सप्लाई दे देते हैं। हमको इन दोनों में से मिनिमम वाला लेना है और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को दे देना है, ताकि हम कॉलम हम सप्लाई और डिमांड को बराबर कर सकें। अब जैसे मैंने इसको 100 दे दिया और यहां पे रह गया हमारे पास 300 और ये रह गया हमारे पास 0। 300 रह गया। अब हमको क्या करना है, ये वाला रो हमारी 0 हो चुकी है, तो ये वाले सारे एलिमेंट्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रह गया ये वाला। इसकी डिमांड है 300 और सप्लाई है 500 की। अब इसको हम 300 एलोकेट कर देते हैं। फिर से 300 इसको एलोकेट करेंगे तो ये 0 रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 200। अब आपको पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही आपका लास्ट एलिमेंट बचेगा उसमें आपकी डिमांड और सप्लाई की वैल्यू सेम आ जाएगी। ये तभी आती है जब हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इसको हमने 200 एलोकेट कर दिए। यहां पे भी हमारा 0 रह गया, यहां पे भी हमारा 0। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ये भी अब खत्म हो चुका है। नाउ टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना है, 250 इंटू 3 प्लस 50 इंटू प्लस 300 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 5 प्लस 300 इंटू 3 प्लस 200 इंटू 2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला हमारे पास 4400 रुपीज 4400। इस तरह से हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को पकड़ा, फिर हमने डिमांड और सप्लाई को देखा। हमने देखा कि डिमांड हमारी कम है, सप्लाई हमारी ज्यादा है, तो हमने डिमांड जितनी भी थी पूरी की पूरी इस कॉलम को एलोकेट कर दी। इस एलिमेंट को हमने पूरी की पूरी डिमांड अपनी एलोकेट कर दी और ये जैसे ही 0 हो जाएगा इसकी सारी कॉलम्स को हम 0 कर देंगे और यहाँ पे हमारा सिर्फ कितना रह गया, 50 रह गया। 50 रह गया। उसके बाद ये वाली हमारी पूरे कॉलम कैंसिल हो गया। हम फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पकड़ेंगे अपना। अब इस बार हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनेगा 1 पे। 1 पे हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास सप्लाई थी 50 की और डिमांड थी हमारे पास 350 की। मैंने 50 इसको एलोकेट कर दिए और यहाँ से 50 रिड्यूस कर दिए तो ये बन गया 300। अब ये 50 इसको एलोकेट कर दिया, यानी कि ये वाली हमारी सप्लाई 0 हो चुकी है। जैसे ये 0 हो जाएगी हम बाकी सारी रो को कैंसिल कर देंगे और फिर से हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बन जाएगा 6। इसी तरह 6 वाला करेंगे, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे सारे एलिमेंट्स फुलफिल नहीं हो जाते। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड। Let's start with another method. As you can see, least cost cell method. Second method is our least cost cell method.
For the sake of simplicity, I have kept this problem same. बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हमने पढ़ लिया है. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में जो मैंने प्रॉब्लम हुई थी, मैं उसको ही लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ. बस इसमें क्या रहेगा, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा. As you can see, as the name suggests, least cost cell method. Here in this problem, these are the source, this is the demand, this is the supply, and we have to solve it. We have to find the total optimal cost. Okay. Now, for finding that, we have to choose the least value element. In this table, we have to choose least value element. अब हम इसमें जैसे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या चूज कर रहे थे, नॉर्थन मोस्ट कॉलम, यानी नॉर्थ वेस्ट वाला जो हमारा कॉलम था हम वो चूज कर रहे थे. इसमें हम क्या चूज करेंगे, जो भी एलिमेंट की वैल्यू सबसे लीस्ट होगी उसको हम चूज करेंगे. इसमें आप देखो क्या कौन सा एलिमेंट सबसे लीस्ट है, 1. मैंने 1 चूज कर लिया. अब 1 के रिस्पेक्टिव डिमांड और सप्लाई देखनी है. स्टेप सारे सेम वही रहेंगे. एलिमेंट चूज करो, उसके रिस्पेक्टिव डिमांड और सप्लाई देखो, जो भी मिनिमम होगा वो डिमांड या सप्लाई में से उसको चूज कर लो, सप्लाई या डिमांड में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लो. जितने भी वैल्यू लेफ्ट हो जाएगी, एक डिमांड या सप्लाई में से एक एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम को हम 0 कर देंगे. अब हमने यहाँ पे देख लिया 350. अब मैं 1 चूज कर लिया. 1 की डिमांड आ रही है 350 और सप्लाई आ रही है 300. अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 300. अब मैं 1 को क्या कर दूंगा, 300 एलोकेट कर दूंगा. 300 350 में से निकालूंगा तो 50 रह जाएगा, और 300 में से 300 निकालूंगा तो 0 रह जाएगा. अब जैसे ही मेरे डिमांड या सप्लाई का कोई एलिमेंट 0 हो जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम को हम कैंसिल आउट कर देंगे. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, ये वाली रो आ रही है, इस पूरी रो को हम कैंसिल कर देंगे. मैंने इस पूरी रो को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया. ठीक है. अब क्या करेंगे, ये वाली रो कैंसिल हो गई है. अब लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स में से हम सबसे छोटा चूज करेंगे. इनमें से सबसे छोटा कौन है, या तो ये 2 होगा या तो ये 2 होगा. अब वो हम पे डिपेंड करता है, हम कोई भी 2 चूज कर सकते हैं. मैं ये वाला चूज कर रहा हूं, यू कैन गो विद अनदर वन. अब 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड क्या है, 250, और सप्लाई क्या, 400. वी हैव टू चूज द मिनिमम वन. हियर द मिनिमम वन इज 250. आई चूज 250 एंड गिव इट टू 2. मैंने 250 चूज कर लिया और 2 को एलोकेट कर दिया. और 250 में से 250 गया 0, और 250 में से 250 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 400 में से, तो हमारे पास रह गया 150. और अब ये वाला हमारा डिमांड 0 हो चुका है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम होगा उस पूरे को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये पहले से ही हमारा कैंसिल आउट है. अब हमारे पास एलिमेंट्स रह गए, ये वाले 6 एलिमेंट्स रह गए. Now we have again to find the minimum one. As you can see, 2 is the minimum one here. We select the 2. Now we compare the demand and supply. Demand is 200, supply is 500. Which one is the minimum one? 200 is the minimum one. We select the 200, allocate it to the 2, and then we subtract from itself. 200 minus 200 gives us 0. 500 minus 200 gives us 300. ठीक है. जैसे एक एलिमेंट हमको 0 मिल गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूरे के पूरे कॉलम को हम कैंसिल आउट कर देंगे. हम इसको कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे. ठीक है. ऊपर वाला पहले से ही कैंसिल है. अब हमारे पास रह गए सिर्फ 4 एलिमेंट्स. फिर से वही प्रोसेस, मिनिमम वैल्यू फाइंड करो. मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 और 3, कोई भी चूज कर लो. मैंने ये वाला 3 चूज कर लिया. इसकी डिमांड है 400, इसकी सप्लाई है 300 की. मिनिमम क्या है, 300. मैं इसको 300 एलोकेट कर दूंगा. अब 300 में से 300 गए, इट विल कम आउट टू बी 0, और 400 में से 300 गए तो आएगा हमारे पास 100. यहां तक ठीक है. अब जैसे ही जो एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम हम 0 कर देंगे. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो मिल रही है हमको, हम इसके सारे एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे. ये पहले से कैंसिल है, ये पहले से कैंसिल है, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया. अब हम देखते हैं हमारे पास क्या रह रहा है, 100, और अब 2 एलिमेंट्स रह गए हमारे पास, 6 और 5. विच वन इज द मिनिमम वन? As you can see, 5 is the minimum one. We choose the minimum one. Minimum one हमने चूज कर लिया. इसमें से हमने डिमांड और सप्लाई कंपेयर कर ली. इसकी डिमांड छोटी है, 100 की डिमांड है इसकी, तो मैंने इसको 100 एलोकेट कर दिया. 100 में से 100 गए 0, 150 में से 100 गया तो 0. सॉरी, 100 में से 150 में से 100 गया तो 50. यहाँ पे आ गया हमारे पास 50, यहाँ पे आ गया 0. अब इस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. इसको भी कैंसिल आउट कर दिया मैंने, और यहाँ पे 100 हमने एलोकेट कर दिया. अब हमारे पास लास्ट में बचा है 6. एक ही एलिमेंट बचा है. एज वी आर डीलिंग विद बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ये कौन सी वाली है, बैलेंस. कैसे,
क्योंकि इसकी डिमांड और कॉस्ट सेम है। इसको आप ऐड करोगे तो इसकी सप्लाई भी 1200 होगी और इसकी डिमांड भी 1200 होगी। ये बैलेंस्ड है, इसलिए हमने क्या कर दिया, ये हमको पता है कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है। और एक तरीका मैंने आपको और बताया इसको चेक करने का, जैसे ही आप अपने लास्ट एलिमेंट में पहुंचोगे, इसकी डिमांड और इसकी सप्लाई हमेशा बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों एलिमेंट्स मेरे 50-50 है, 6 को मैं क्या करूंगा 50 एलोकेट कर दूंगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टोटल कॉस्ट आपको निकालना आता है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या करना है, जितने भी हमने एलोकेशन किए हैं उनको एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से, 300 इंटू 1 प्लस सेकेंड रो में आ जाते हैं 250 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 5 प्लस 300 इंटू 3 प्लस 200 इंटू 2। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएंगे ₹2900। दिस इज द वे वी सॉल्व लीस्ट कॉस्ट मेथड। Now, the last method for solving the balanced transportation problem is Vogel's approximation method. It is the third method. First two we have studied. First one was northwest quadrant method, जिसमें हम नॉर्थवेस्ट क्वाड्रेंट चूज करते थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई डिमांड देखते थे, जो भी छोटी होती थी उसको एलोकेट कर देते थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम रो को 0 कर देते थे और फिर से शुरू करते थे प्रोसेस तब तक जब तक सारी हमारी सप्लाई डिमांड 0 नहीं हो जाती। सेम हमने क्या पढ़ा, लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसमें हम लीस्ट कॉस्ट मेथड पढ़ते थे और बाकी का प्रोसेस सारा सेम नॉर्थवेस्ट क्वाड्रेंट मेथड जैसा। अब हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड में हमने क्या करना है, सबसे पहला हमारा इनिशियल स्टेप इसमें रहेगा, हमको रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस फाइंड करना है। अब रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस क्या चीज है, जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू लेनी है और नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू लेनी है। अब जैसे मैं इस स्टेप रो की बात करूं, इसमें लीस्ट वैल्यू है 1 और उससे नेक्स्ट लीस्ट है 3। अब इनका हमने डिफरेंस फाइंड करना है। 3 - 1 इज 2। इस रो का रो डिफरेंस आ गया 2 और अब मैं सिंपल प्रोसेस करूंगा। अब नेक्स्ट रो के लिए इनमें लीस्ट है 2 और उससे बड़ा है हमारे पास 5। 5 - 2 इज 3। सेम केस 3 और 2 ये मिनिमम है, उससे थोड़ा सा बड़ा 3 है। 3 - 2 इज 1। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, रो डिफरेंस। इसी तरीके से मैं क्या फाइंड करूंगा, कॉलम डिफरेंस। कॉलम डिफरेंस फाइंड करने के लिए सबसे मिनिमम कॉलम लिया, उससे एक बड़ा कॉलम लिया, यानी यहां पे अगर मैं बात करूं मिनिमम कॉलम इज 2, इससे एक बड़ा हमारे पास क्या आ रहा है 3। अब 3 - 2 इज 1, मैंने 1 लिख दिया। सेम हियर, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने प्रॉब्लम सेम रखी है। अब सेम केस हम लगाते हैं यहीं पे, इसमें सबसे मिनिमम है 1 और उससे बड़ा हमारे पास 3। 3 - 1 इज 2। अब सेम केस यहां पे भी लगाएंगे, सबसे छोटा है 3, उससे बड़ा है 5। 5 - 3 ये तो 2, सबसे छोटा है 2, उससे बड़ा 4। 4 - 2 इज 2। अब हमारे पास क्या आ गया, रो डिफरेंस भी आ गया फर्स्ट रो का और कॉलम डिफरेंस भी आ गया। इस रो डिफरेंस और इस कॉलम डिफरेंस को हम बोलते हैं पेनल्टीज। याद रखिएगा, पेनल्टी इसको ही बोलते हैं। रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस की ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम पेनल्टी भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमने देखना है कॉलम डिफरेंस और रो डिफरेंस में से हमने मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है। यहां पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3। यहां पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3। अब जैसे ही मुझे कॉलम और रोज इन दोनों में से हमको क्या देखनी है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। जैसे ही मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 3, अब मैं चूज क्या करूंगा, इस रो को चूज करूंगा। इस रो में सबसे लीस्ट एलिमेंट, इस रो में सबसे लीस्ट एलिमेंट, इस रो का सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 2। मैं 2 को चूज करूंगा। अब सेम वही प्रोसेस, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड चेक करूंगा, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई चेक करूंगा। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड और सप्लाई में से छोटा कौन सा है, डिमांड। अब मैं इसको क्या करूंगा 250 एलोकेट
कर दूंगा। 250 इसको एलोकेट कर दिया तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा 0, और 250 इसमें से निकाल दिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा 150। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या रह गया 0। तो जैसे ही हमारे पास रो या कॉलम 0 हो जाता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम रो या कॉलम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब ये हमारे पास 0 हो चुका है तो ये पूरा कॉलम में क्या कर दूंगा कैंसिल आउट, इसको भी कैंसिल, इसको भी कैंसिल और इसको भी कैंसिल। अब हमारे पास एलिमेंट्स कौन से रह गए ये। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हमको फिर से वही स्टेप करना पड़ेगा, क्या रो डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा और कॉलम डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। रो डिफरेंस अब फिर से निकालते हैं हम। अब हमारे पास लीस्ट एलिमेंट कौन सा है 1, और उससे एक बड़ा कौन सा है हमारे पास 4, 4 - 1 इज 3। सेम केस अप्लाइज हियर, 5 से छोटा है, 6 उससे बड़ा है, और 6 में से 5 गए तो 1। अब 2 यहाँ पे सबसे छोटा है, 3 उससे बड़ा है तो 2, 3 में से 2 गए तो 1। सेम हम अप्लाई करेंगे कॉलम डिफरेंस फाइंड करने के लिए। ये वाला कॉलम डिलीट कर चुके हैं पहले, इन्हीं में से चूज करेंगे। सबसे छोटा है 1, उससे बड़ा है 3, 3 में से 2 गए तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3 में से 1 गए तो हमारे पास आ जाएगा 2, सॉरी 3 में से 1 गया हमारे पास 2 आ गया। सेम हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी 3 और 5, 3 सबसे छोटा, उससे बड़ा हमारे पास 5 है, 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पे भी 4 और 2, 2 सबसे छोटा और उससे बड़ा हमारे पास 4 है। 4 - 2 इज 2। ओके, कॉलम डिफरेंस पे निकाल लिया हमने, रो डिफरेंस पे निकाल लिया। अब फिर से हमने वही देखना मैक्सिमम वैल्यू रो और कॉलम डिफरेंस। पेनल्टीज में से जो मैक्सिमम वैल्यू उसको हमने चूज कर लेना। पेनल्टीज में से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 है, हमने 3 को चूज कर लिया। अब किस पे काम करेंगे हम 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग रो पे। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या देखेंगे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारे पास 1। ठीक है, अब 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या देखेंगे डिमांड और सप्लाई। सप्लाई 300 की है, डिमांड 350 की है, तो सप्लाई क्या कर देंगे हम इसको एलोकेट कर देंगे। 300 मैंने इसको पूरा का पूरा एलोकेट कर दिया। 300 में से 300 गए 0, और 350 में से 300 गए क्या बच जाएगा 50 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये वाली हमारे पास रो 0 हो चुकी है तो इसके सारे एलिमेंट्स को हम कैंसिल आउट कर देंगे। मैंने इन सब एलिमेंट्स को क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। अब हमने क्या करना है फिर से वही मेथड अप्लाई करना है। वापिस से हम क्या करेंगे पेनल्टीज फाइंड करेंगे, रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस फाइंड करेंगे। रो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। अब ये वाली रो तो पूरी कैंसिल आउट हो गई है तो इसकी रो डिफरेंस नहीं आएगा। इस वाली रो की बात करें, सबसे छोटा 5, उससे बड़ा 6, 6 में से 5 गए 1। सेम यहाँ पे भी ये वाला एलिमेंट कैंसिल हो गया, ये 3 एलिमेंट्स बचे हैं, इनमें से 3 2 से बड़ा है और हमने क्या करना है सबसे छोटा और उससे 1 बड़ा, 3 में से 2 गए तो 1। अब सेम केस हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये वाली रो कैंसिल हो चुकी है, ये वाले एलिमेंट्स बचे हैं। कॉलम पेनल्टी फाइंड करने के लिए ये तो आएगी नहीं, ये पहले से कैंसिल हो चुकी है। 3 6 में से 3 गए 3 आ जाएगा क्योंकि 3 सबसे छोटा है और उससे बड़ा हमारे पास एक ही एलिमेंट बचा है 6, और 6 - 3 इज 3। यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स बचे हैं, 5 - 3 इज 2, 9 - 2 इज 7। सेम केस अप्लाई है। हमने फिर से क्या फाइंड करना सबसे बड़ी वाली पेनल्टी। सबसे बड़ी वाली पेनल्टी कहाँ पे यहाँ पे ये कॉलम है और ये रो आपके पास। सबसे बड़ी वाली पेनल्टी 7 है, 7 में कंसीडर कर लूंगा। अब मैं 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को पे काम करूंगा। 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम मैंने ये चूज कर दिया, डी कॉलम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, और डी में से हम क्या चूज करेंगे मिनिमम वाला। डी में मिनिमम क्या है 9 और 2 में से 2 इज मिनिमम। 2 मैंने चूज कर लिया। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड क्या है 200, और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई क्या है 500। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड मेरे पास 200, मैंने इसको एलोकेट कर दिया। 200 कैंसिल हो गया, 200 - 200 इज 0, 500 - 200 इज 300। अब जैसे आप जानते हो when any demand or supply term becomes 0, the corresponding row or column is deleted। अब इसके corresponding column कौन सा है ये वाला, इसको मैं क्या कर दूंगा डिलीट कर दूंगा, ये भी डिलीट कर दूंगा, ये भी डिलीट कर दूंगा, ये पहले से ही डिलीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप फिर से क्या फाइंड करो रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस फाइंड करो। हर स्टेप के बाद इसमें ट्रिक बस इतनी सी है, ये सेम लीस्ट कॉस्ट मेथड की तरह ही हम काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रिक इसमें ये है कि हर स्टेप के बाद हम रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, यानी वी आर फाइंडिंग द पेनल्टीज आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप। नाउ अगेन ये वाली कैंसिल हो चुकी है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। इस वाली रो में हमारे पास 2 एलिमेंट्स बचे हैं, 6 - 5 एक ही आने वाला है, 3 - 3 इज 0, इसको भी लिखने का कोई फायदा नहीं। फिर हम आगे चलते हैं। इस वाला कॉलम ये वाला कॉलम पूरा कैंसिल आउट हो चुका है। इस वाले कॉलम में हमारे पास 2 एलिमेंट्स बचे हैं, 6 - 3 इज 3, 5 - 3 इज 2, ये हमने ले लिया। अब फिर से हमने क्या करना है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू कम्स आउट टू बी 3।
3 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कॉलम है? बी कॉलम है। बी में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने डिमांड देखनी है। डिमांड है हमारे पास 50 और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई है हमारे पास 300। इनमें से मिनिमम कौन सा है? 50। मैं इसको 50 एलोकेट कर दूंगा। 50 एलोकेट कर दिया, ये 0 हो जाएगा और ये हमारा 300 में से रह जाएंगे 250। ठीक है, जैसे 250 रह गया और ये 0 हो चुका है, और जैसे ही हमको पता है जो हमारा कॉलम डिमांड या सप्लाई में एलिमेंट हमारा 0 हो जाता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब मैं पूरा का पूरा ये कॉलम भी कैंसिल आउट कर दूंगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब देख सकते हैं इसका रो डिफरेंस हम निकाल नहीं सकते, हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर से कॉलम डिफरेंस निकालेंगे, तो एक हमारे पास 2 ही बचा है, 2 ही मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। अब हम इस 2 को कंसीडर कर लेंगे, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम जो भी कॉलम है उसकी वैल्यू को हम कंसीडर कर लेंगे। 2 के वैल्यू हमारे पास मिनिमम वैल्यू वाला कॉलम कौन सा है? 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? नाउ हियर वी कैन सी कि हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 में से 3 गया और 2 का। अब इसमें से हमको क्या चूज करना है? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 की मैंने चूज कर लिया। यहाँ पे इनकी सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करूंगा, इसकी डिमांड 400 है और सप्लाई 250 की है। मैंने इसको सप्लाई कर दिया 250 में से 250 गया 0 और यहाँ पे रह जाएगा मेरा 150। और क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये कॉलम, ये रो पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। ये भी कैंसिल है, ये पहले से ही कैंसिल है, ये तीनों पहले से ही कैंसिल है और ये वाला मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स कैसे? क्योंकि आप इसकी डिमांड और सप्लाई को ऐड करोगे तो 1200 ही आने वाला, चाहे आप सारी सप्लाई को ऐड कर लो चाहे पूरी डिमांड को ऐड कर लो। ठीक है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। और पहले भी मैं एक तरीका बता चुका हूं, जैसे ही हमारा लास्ट एलिमेंट बचेगा, ये हमारा लास्ट एलिमेंट बचा है, जैसे ही हमारा लास्ट एलिमेंट बचेगा, इसकी डिमांड और सप्लाई हमेशा क्या रहने वाली है? इक्वल रहने वाली है। मैं इसको 150 एलोकेट कर दूंगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये वाला हम एलिमेंट भी कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? अब हमको कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट। मैं टोटल कॉस्ट यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है? जितने भी एलोकेशन हमने कर रखी हैं उनको हमने लिस्ट कर देना और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देना। पहली रो की बात करूं, 300 इंटू 1 प्लस सेकेंड रो में 250 इंटू 2 प्लस 150 इंटू 5 प्लस 50 इंटू 3 प्लस 250 इंटू 3 प्लस 200 इंटू 2. It will come out to be rupees 2850. This is your Vogel's approximation method. इसी को हम क्या बोलते हैं? WAM method. I hope आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे. In the next video, we will study the unbalanced transportation problems.